وبركاته. یہ اردو ریڈیو قطر ہے. اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. امن و امان اور جنرل سیکیورٹی کے نامبیو انٹرنیشنل انڈیکس 2020 میں قطر عالمی سطح پر بدستور پہلی پوزیشن پر ہے. وزیر صحت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قطر کی اسٹریٹجی کیسز کا پیچھا کرنے اور ان کا پتہ لگانے پر بیس کرتی ہے تاکہ وبا کے پھیلاؤ کو کم کیا جا سکے. قطر نے کورونا وائرس کے پیک ٹائم کے بعد سے اس کو کنٹرول کرنے میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ عالمی سطح پر کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے اور تعداد کے اعتبار سے امریکہ اور برازیل کے بعد بھارت تیسرے نمبر پر آ گیا ہے. اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطر ایک بار پھر پوری دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ اور جرائم سے پاک ملک قرار دیا گیا ہے. عالمی اشاریہ نمبیو کے انڈیکس 2020 کے فرسٹ ہاف کے اعداد و شمار کے مطابق ایویلویشن میں شامل دنیا کے 133 ملکوں میں سے قطر بدستور سب سے زیادہ سیف ملک قرار دیا گیا ہے. اس عالمی اشاریے میں بدستور پہلی پوزیشن پر رہنے کی وجہ قطر میں اعلیٰ ترین سیکیورٹی سسٹم اور جرائم کے ریشو میں انتہائی کمی ہے. قطر نے جنوب مشرقی افغانستان کے علاقے جاگاتو میں کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. اس دھماکے میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ قطر ریزنز اور موٹیوز سے قطع نظر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے. بیان میں مہلوکین کے اہل خانہ، حکومت اور افغان عوام کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے. کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قطر کی کوششیں مقامی سطح تک محدود نہیں ہیں بلکہ وہ عالمی کوششوں میں بھی فعال انداز میں شریک ہے. اس ضمن میں قطر نے فرینکوفونی عالمی تنظیم کے 110ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں قطر کی نمائندگی فرانس میں قطر کے سفیر اور اس تنظیم کے لیے اس کے مستقل نمائندے شیخ علی بن جاسم آل ثانی نے کی. اجلاس کے دوران کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے فرینکوفونی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے پاس موجود آپشنز پر غور کیا گیا. اسی حوالے سے قطر نے جنیوا میں منعقدہ ایک اور اجلاس میں شرکت کی ہے، جس کے دوران جنیوا میں موجود اقوام متحدہ کے اداروں کے لیے قطر کے مستقل وفد میں سیکنڈ سیکریٹری جناب محمد عبداللہ البوعینین نے وبائی امراض کے مقابلے کے لیے پختہ معلومات کی فراہمی اور آپسی رابطوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا. دریں اثنا قطر ترقیاتی فنڈ کے ڈائریکٹر جنرل جناب خلیفہ بن جاسم الکواری نے اعلان کیا ہے کہ قطر عالمی وباؤں کے مقابلے کے لیے درپیش چیلنجوں کے متعلق کم ترقی یافتہ ملکوں کی اقوام متحدہ کی آنے والی 5ویں کانفرنس کی میزبانی کرے گا. ان وباؤں میں کورونا سر فہرست ہے. اس بات کا اعلان اقوام متحدہ کی معاشی اور سماجی کونسل کے اجلاس کے دوران کیا گیا. قطر کی وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی پالیسی لوگوں کے ٹیسٹ کرنے، معاملوں کا پیچھا کرنے اور وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام کیسز کو آئسولیٹ کرنے جیسے اصولوں پر مبنی ہے. یہ بات انہوں نے کووڈ 19 کی روک تھام کرنے والی ٹیکنیکل رہنما میڈیکل ٹیم کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران کہی. وزیر صحت نے اس ٹیم کی کوششوں کی تعریف کی. واضح رہے کہ قطر میں کورونا وائرس کے پیک ٹائم کے بعد سے کل 12 جولائی کو نئے کیسز کی اب تک کی سب سے کم تعداد ریکارڈ کی گئی.
कल सिर्फ 470 नए मामले सामने आए, जबकि मजीद 809 अफराद की शिफायाबी का ऐलान किया गया, जिसके बाद रिकवर होने वाले कुल मरीजों की तादाद 99,743 हो गई है। शिफायाब होने वालों की तादाद में इजाफे और नए मरीजों की तादाद में कमी के रुझानों से साबित होता है कि कतर की पॉलिसी कामयाब रही और इस पर अमल दरामद में शोबा सेहत से मुंसलिक अफराद की कोशिशों का नुमायां हिस्सा है। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव के इशारिये में कमी के बावजूद सरकारी इदारों की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। वजारत बराए इंतजामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर ने जोर देकर कहा है कि कंपनियों में काम करने वालों को बिलखुसूस तमाम एहतियाती तदाबीर की हर हाल में पाबंदी करना होगी। इस ज़िम्न में वजारत की टीमें तफ्तीशी दौरे कर रही हैं, जिनके दौरान लेबर एकोमोडेशन में सेफ्टी और सेहत के उसूलों पर अमल दरामद का मुआयना किया जा रहा है और खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाए जाने वाली कंपनियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी जानिब आलमी सतह पर इस वबा का शिकार होने वालों की तादाद 1,30,00,000 के करीब पहुंच गई है, जिनमें से तकरीबन 5,70,000 दुनिया छोड़ चुके हैं, जबकि 75 लाख के करीब सेहतयाब हो गए हैं। दरियासना भारत में कोरोना के मामलों की तादाद 8.5 लाख तक जा पहुंची है, जो अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरी बड़ी तादाद है। कल भारत में एक दिन में सामने आने वाले मामलों की सबसे बड़ी तादाद रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान में आलमी इदारा सेहत WHO की एक टीम कोरोना वायरस की शुरुआत की तहकीकात करने के लिए चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंच गई है, जिसमें जानवरों की सेहत और वबाई उलूम के माहिरीन शामिल हैं। उधर रूस ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए तैयार की जाने वाली एक वैक्सीन के तजर्बात कामयाब रहे हैं और उम्मीद है कि ये दवा वायरस पर काबू पा लेगी। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। लीबिया में स्टेट काउंसिल ने जनाब खालिद अल मशरी को अगली मुद्दत के लिए दोबारा काउंसिल का सदर मुंतखब कर लिया है। जनाब अल मशरी ने कहा कि काउंसिल खलीफा हफ्तर की इस तजवीज़ को मुस्तरद करती है कि पेट्रोल तनसीबात को दोबारा खोल दिया जाए और पेट्रोल से होने वाली आमदनी को रखने के लिए बैरून मुल्क बैंक अकाउंट खोला जाए। उधर लीबिया के पड़ोसी मुल्क अलजज़ायर के वजीर बराए उमूर खारजा जनाब सबरी बो कदूम ने कहा है कि उनका मुल्क लीबिया की सालमियत के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। उन्होंने लीबिया में किसी भी तरह के फौजी हल को मुस्तरद करते हुए तमाम फरीकों से अपील की कि वो अलजज़ायर की सालिसी को कबूल कर लें। अलजज़ायर के ही पड़ोसी मुल्क ट्यूनिस में अन्नाहज़ा पार्टी ने पार्टी के सदर और पार्लिमान के स्पीकर जनाब राशिद अल गन्नूशी को सदर जमहूरिया और तमाम सियासी और समाजी ताकतों के साथ नई हुकूमत की तश्कील के लिए ज़रूरी मुज़ाकरात करने का इख्तियार और जिम्मेदारी सौंप दी है, जबकि सियासतदानों का कहना है कि मुल्क की कम अज कम 5 सियासी पार्टियां आज पीर से पार्लिमानी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक शुरू करने वाली हैं। ये अन्नाहज़ा पार्टी के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल होगी, जिसके नतीजे में तुनिस में शदीद सियासी बहरान या पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो सकता है। इराक में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क के मगरबी सूबे अलंबार के सहरा इलाकों में दाइश तंजीम के बाकी मानदा अनासिर का पीछा करने के लिए एक सिक्योरिटी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया है। एक दीगर खबर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली शहर अल-मूसल में दाइश के एक कमांडर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ईरान के शहरी हवाबाजी के इदारे या सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता माह जनवरी में यूक्रेन के मुसाफिर बरदार जहाज को पेश आने वाले हादसे की वजह राडार सिस्टम में आने वाली एक गलती और एयर डिफेंस पर मामूर शख्स के दरमियान राब्ता न होना थी, जिसके नतीजे में इस जहाज को गिरा दिया गया और इस पर सवार 167 जानें ज़ाय हो गईं।
और अमरीकी सेनेट में अदालती उमूर की कमेटी के सरबराह रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ऐलान किया है कि वो डेमोक्रेट्स के इस मुतालबे में उनका साथ देंगे कि सदारती इलेक्शन में रूसी मुदाखलत की तहकीकात करने वाले खुसूसी तफ्तीशकार रॉबर्ट मुलर अपनी गवाही पेश करें। ये मुतालबा मिस्टर मुलर के एक आर्टिकल के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी तहकीकात का दिफा किया है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। अमन व अमान और जनरल सिक्योरिटी के नामगियो इंटरनेशनल इंडेक्स 2020 में कतर आलमी सतह पर एक बार फिर पहली पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब रहा है। वजीर सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कतर की स्ट्रेटेजी केसेस का पीछा करने और उनका पता लगाने पर बेस करती है ताकि वबा के फैलाव को कम किया जा सके। कतर ने कोरोना वायरस के पीक टाइम के बाद से उसको कंट्रोल करने में गैर मामूली कामयाबी हासिल की है, जबकि आलमी सतह पर केसेस में तेजी के साथ इजाफा हुआ है और केसेस की तादाद के एतबार से अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा न्यूज़ बुलेटिन